Okay, so welcome friends. So today basically we have yesterday we were discussing about Indian psychology. Okay, today we'll continue with this subject because it was not completed yesterday. So just a quick recap what we have discussed yesterday. Yesterday we discussed about Indian psychology, psychology in India and indigenous psychology. We also discussed about its growing importance because if we see the past 5 or 6 years question papers basically, so there is an increasing importance of this Indian psychology and the increasing weightage of the questions related to it in the net psychology. Not just this, if we look around, in the universities and the colleges and the whole framework of NEP, there is a growing emphasis on the indigenization of basically the knowledge. So in that sense, it is very important to understand the different components of it. So last जो कल है we have discussed about basically Indian psychology, psychology in India and indigenous psychology. Fine. उसके बाद हमने थोड़ा सा मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फाउंडेशनल मॉडल क्या है, बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस, what we mean by consciousness and how it is differ from what the Western people basically describe, what the difference between what we called as a mind and what they call basically as a kind of mind, their connotations of it. And then we also discussed about the jiva, the person who is a kind of knower and bhokta, the enjoyer, the sufferer or doer, basically agent. So we have discussed about it. We have also discussed about the three levels of knowing, that is the shravan, through the senses when we acquire the knowledge, manan when we contemplate and think, and third one is nididhyasan, basically that is when we close our eyes and do some meditation, and then the kind of knowledge we come across, that is the nididhyasan. Okay, तो उसके बाद हमने जो है वो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 5 डिफरेंट सिस्टम्स. भगवत गीता के बारे में हमने बात करी थी कि कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे, गुना, राजसिक, तामसिक, सात्विक, कर्म योगा, इक्वानिमिटी, स्वधर्मा एंड निष्काम कर्मा. ओके, its importance about how basically Krishna plays the role of psychotherapist and Arjuna as a basically the counselor, and how counsel basically a client, and how basically the Krishna give the kind of a therapy we can call it. Then we discussed about some concepts of Buddhism related to the dukkha, anatta, impermanence, mindfulness, and basically nirvana. Okay, उसमें फिर there are 4 noble truths and 8 fold paths. We discussed about Sufism, Integral Yoga and Patanjali. तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो भगवत गीता और बुद्धिज़्म के बारे में तो हमने बात कर ली थी, बट वी हैवंट डिस्कस्ड very much about basically much in detail about the Sufism, Integral Yoga and Patanjali. So in this class जो है हम थोड़ा सा इनके ऊपर और emphasis करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. इसमें विल डिस्कस अबाउट द एकेडमिक साइकोलॉजी का जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, नॉट इंडियन साइकोलॉजी, एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया का जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. देन इन टुडेज क्लास विल डिस्कस अबाउट द पैराडाइम, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथडोलॉजी. ये 3 कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, पैराडाइम है क्या, वेस्टर्न पैराडाइम कौन से हैं, इंडियन पैराडाइम ऑफ नॉलेज कौन से हैं बेसिकली. And then the comparison, western paradigm में in the net syllabus there are basically six different paradigms: positivism, post-positivism, critical perspective, social constructionism. तो इनका मतलब क्या होता है, मेथडोलॉजी क्या होती है, एग्जाम से रिलेटेड इनका क्या इम्पोर्टेंस है, दैट विल टॉक अबाउट इट. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन नॉलेज पैराडाइम्स, जिसमें हम योगा, भगवत गीता, बुद्धिज्म इनके बारे में हम बात कर ही रहे हैं. उसके बाद वी टॉक अबाउट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विद्या, द नॉलेज, विद्या, avidya, अपराविद्या, पराविद्या, what all these the meanings of all these things, psychological meaning क्या है, literal sense क्या है, इनका application क्या है. एंड देन इंडियन एंड मेन स्ट्रीम जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसमें जो है थोड़ा सा मोटा मोटा जो डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये हमारा जो है सारा
आज का जो है वो सिलेबस होगा. So before we move into it, first I was talking to you about talking to the yoga, the Patanjali Yoga. Okay, Patanjali Yoga system. So Patanjali Yoga system की अगर हम बात करें तो what does this mean? As the name suggests, वैसे तो एक्चुअल जो टर्म है वो तो योग है, योगा नहीं. योग का मतलब when the two things, when you know, combined, joined, दो चीज़ों का योग, basically that is basically what we call it as yoga. But see what happens, a lot of like when the Western people came, they found it difficult to pronounce yoga, so they pronounce it as a yoga and it becomes habitual. But the actual word is basically what, yoga. ओके, तो योग के बारे में तो बेसिकली आपने सुना होगा. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट बाबा रामदेव योग बेसिकली, बट यस हिज style of yoga, basically what he is doing is heavily obviously inspired by the Patanjali Yoga Sutra. So we are talking about here. So पतंजलि नाम के एक ऋषि हुए, संत हुए, उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था योगा सूत्रा, और उन्होंने जो है अलग अलग सूत्र दिए उसके बारे में है. तो बेसिकली दिस पतंजलि योगा इज बोथ द थ्योरी ऑफ द माइंड. थ्योरी ऑफ द माइंड का मतलब माइंड किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रखा है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये कैसे फंक्शन करता है, अंडरस्टैंड. सो दैट इज व्हाट द थ्योरी ऑफ माइंड प्लस इट्स एप्लीकेशन. क्या मेथड है, हम किस तरीके से अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि वी अटेन एन एनलाइटनमेंट एंड एवरीथिंग. बिफोर वी प्रोसीड, एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा लो. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन साइकोलॉजी एंड डिफरेंट इंडियन सिस्टम्स, चाहे वो भगवत गीता की बात है, चाहे वो बुद्धिज़्म की बात है, चाहे वो इंटीग्रल योगा की बात है, सूफिज़्म की बात है, ये अपने पतंजलि योगा की बात है, सब कुल मिला के एक ही चीज़ बोलते हैं, दैट इज़ कैसे हम अपने स्वरूप को जाने. हु एम आई, मैं कौन हूँ एक्चुअली में. एम आई दिस बॉडी, एम आई दिस thing what I called. If I ask myself who am I, so I say my name is Gagan, I'm an assistant professor, I'm a teacher, I'm a husband, I'm a son, whatever. But all these things are being given to me by the society. Are you getting? Are these things given to me by the society, and when the death comes, all these things remain here only. Have you ever थिंक अबाउट इट दैट व्हेन वी स्लीप, जब हम सपने में होते हैं तो हम कुछ नहीं रह जाते. ऑल्दो यस देयर आर, आपने सुना होगा, इट्स अ काइंड ऑफ दिस कॉकटेल पार्टी फिनोमिनन, है ना. जब सपने में भी अगर हम होते हैं तो हमारा नाम अगर कोई बुलाता है तो हो सकता है कि हम ज़्यादा अटेंटिव हों उस नाम के लिए और हम सपने से जाग जाएं या नींदों में से जाग जाएं. और अगर हम बहुत गहरी नींद में और दूसरा कोई बात कर रहा है किसी और के बारे में तो हम नहीं जागें. इट्स अबाउट हमारा आइडेंटिफिकेशन अपने नाम के साथ और इस शरीर के साथ. लेकिन एक्चुअली में व्हेन वी आर इन स्लीप, हम ना तो ये शरीर रह जाते हैं, ना हम जो है हमारा नाम, सन, डॉटर, कुछ भी नहीं रहता. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि इंडियन साइकोलॉजी का जो पूरा मकसद है, एम है, वो यही है कि जो हमारा एक्चुअल नेचर है, स्वरूप है, स्वधर्म है, उसको हम पहचान लें. और जितने भी फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस हैं जिसको हमने मान रखा है कि मैं हूँ जबकि मैं नहीं हूँ, गेटिंग, उन चीज़ों को पहचानना ही इंडियन साइकोलॉजी का पूरा की पूरा एम है. ओके, कैसे ये वेस्टर्न साइकोलॉजी के साथ डिफर करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जो है वो बात करेंगे. तो पतंजलि योगा जो है, ही पतंजलि वाज अ कंपाइलर ऑफ योगा सूत्रास, वन ऑफ द मोस्ट सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल टेक्स्ट इन द इंडियन ट्रेडिशन. उसमें उन्होंने योग के डिफरेंट डिफरेंट सूत्र दिए और किस तरीके से कैसे हम उन सूत्रों को अपने जीवन में अपना के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें जो सबसे कोर प्रॉब्लम थी, अब ये देखो कि इंडियन साइकोलॉजी कितनी डीप है और कितनी पुरानी है, ये हमें पता लगेगा.
अभी हम जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो 150-200 साल पुरानी है, और हम बोलते हैं कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, वेस्टर्न साइंस। अब जब इंडियन साइकोलॉजी की डेप्थ पढ़ेंगे कि हज़ारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने क्या क्या बोला माइंड के बारे में, वी वुड बी सरप्राइज्ड। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, या साइकोलॉजी की किताब में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते तो बहुत छोटा सा सेक्शन होता है, बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। ही टॉक्ड अबाउट चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त का मतलब है हमारा माइंड, पूरा की पूरा, इट्स अ काइंड ऑफ द टोटल फील्ड ऑफ मेंटल एक्टिविटी। चित्त वृत्ति, उसके अंदर चलते हुए थॉट्स, इमोशंस जो कि चेंज हो रहे हैं, जो कि फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जो कि कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। निरोध, निरोध का मतलब उस चित्त में, उस माइंड फील्ड में ये जो फ्लक्चुएशन चल रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, एज सिंपल एज दैट। इट इज समथिंग लाइक, चित्त वृत्ति निरोध का मतलब देर इज एन ओशियन। ओशन पूरा की पूरा जो इतना बड़ा महासागर है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ चित्त। उसके अंदर जो बहुत सारी लहरें उठ रही हैं, वेव्स उठ रही हैं, दैट इज वृत्तियाँ। अंडरस्टैंड? जो आती है और चली जाती है, वृत्ति। निरोध का मतलब कैसे, जब तक हम उन वृत्तियों को, उन लहरों को शांत नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तब तक हम उस सागर की गहराई को नहीं जान सकते हैं, यानी कि हु एम आई। So I can only know myself when these fluctuations in form of thoughts, attachments, identifications, emotions, afflictions and all that thing, जब तक मैं इनको नहीं, इनका निरोध नहीं करूँगा, यानी कि इनको नहीं रोकूंगा, तो मैं अपने बारे में नहीं जान सकता। I think that is basically what it means by chitta vritti nirodha, is a cessation or restraint of the fluctuations of the mind. Just look at its importance, what he is talking. Presently अगर अपन psycho, what we can say, अगर अपन mental disorders की बात करें, what is anxiety, what is OCD, what is different other types of psychiatric illnesses. You see, it's all, they most of them are all based on either the emotions or the thoughts, and where it is running in the mind. Understand? And if we are able to control our mind or able to learn how to manage all these things, everything is solved. तो जितना अपन इतनी बड़ी क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इतना सारा वेस्टियो, बट व्हाई वी आर नॉट बेसिकली फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स? Getting this point? That's what he is basically talking about. Ab, he also in the Yoga Sutra, he also talks about, you might have heard about Purusha and the Prakriti. मैं केवल आपको छोटा छोटा सा, अगेन ये अपने आप में बहुत ही इन डेप्थ सब्जेक्ट है, और ना तो मैं टू बी ऑनेस्ट इतना कैपेबल हूँ कि बहुत डेप्थ में इसको समझा सकूँ, है ना? क्योंकि आपने सुना होगा, अगर आप ऋषिकेश में जाएंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, तो साल साल भर के कोर्स होते हैं जहाँ पे लोग इस चीज़ को सीखते हैं, उसकी डिफरेंट थ्योरीज के बारे में सीखते हैं, टाइप्स के बारे में सीखते हैं। अपन तो थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो कि अभी हमारा फोकस थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वी विल जस्ट फोकस ऑन दैट। ही टॉक्स अबाउट पुरुषा एंड प्रकृति। पुरुषा का मतलब पुरुष एंड प्रकृति। व्हाट डज इट मीन? उस पुरुष का मतलब इट्स नॉट द मेल एंड द फीमेल। पुरुष एंड प्रकृति का मतलब, पुरुष denotes to the pure consciousness, unchanging witness, sakshi, understand, which does not change. अगर अपन वेदांत, इंडियन साइकोलॉजी में क्या, इंडियन what we called as Indian understanding of the truth or the reality is this, that whatever changes is an illusion. माया क्या है? माया वही है जो कि नित्य परिवर्तित होता है, जो आज है और कल नहीं है, केवल ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ होती है जो बहुत जल्दी चेंज होती है, कोई चीज़ होती है जो चेंज थोड़ी स्लो होती है, तो हमें लगता है कि कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। आर यू गेटिंग? जैसे कि रात में हम सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं तो वो गायब हो गया, तो हम उसको सपना बोलते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ अ माया। क्यों? इट्स अ, वाई इट इज़ अ ड्रीम? बिकॉज रात में तो था, लेकिन सुबह तो गायब हो गया। लेकिन ये पूरी की पूरी लाइफ है, इसको हम रियलिटी क्यों मानते हैं? क्योंकि बहुत लंबी है। लेकिन अगर अपन इमेजिन करो कि करोड़ों लाखों साल की ये पूरी लाइफ ही है इस पृथ्वी की, हम पता नहीं कितनी बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, हजारों करोड़ बार अगर हम जन्म लेते हैं, तो हर बार हम
उठे, हमने पैदा हुए, हमने बहुत सारा काम किया, उसके बाद बूढ़े हुए, मर गए। अगर उसको हम कंपैरिजन करें करोड़ों सालों के उसमें, तो ये तो एकदम मोमेंट ही है ना रिलेटिवली। तो इजंट इट अ माया कि अभी कुछ था रियलिटी में और अब एकदम गायब हो गया। दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर कॉलिंग द ड्रीम्स इन द नाइट, द थॉट्स। गेटिंग दिस पॉइंट? सो पुरुष हमने सत्य उसी को माना है इंडियन अंडरस्टैंडिंग में जो चेंज नहीं होता है, विच डज नॉट चेंज, विच ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इज द ओनली रियलिटी, वट एवर चेंजेस इज एन इल्यूजन। ओके, इट इज द माया। तो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट पुरुषा का मतलब प्योर कॉन्शियसनेस विच डज नॉट चेंज, जिसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, जो कि एज इट इज है प्योर विटनेस, उसको बोला गया है साक्षी भाव। ठीक है। प्रकृति, प्रकृति का मतलब मैटर, नेचर विच कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अभी कुछ है और अभी कुछ, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ सब कुछ बदल रहा है। इनफैक्ट ये शरीर, हम बच्चे थे, फिर बूढ़े हुए, हमारे शरीर का साइज बदला, शेप बदली, ऑल दीज थिंग्स आर चेंजिंग। इवन माई थॉट्स, अभी 2 मिनट पहले मैं कुछ और सोच रहा था, अभी 2 मिनट बाद में कुछ और सोच रहा हूँ। इवन माई इमोशंस, कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश था और अभी मैं थोड़ा सा सैड हो गया। एवरीथिंग विच एवर इज चेंजेस इज द पार्ट ऑफ द प्रकृति। Everything, anything which remains constant does not change is a Purusha, real, only truth। उसे ही बोलते हैं ना सत्य केवल एक है, वो, उसको इंडियन साइकोलॉजी में बोला है कॉन्शियसनेस। अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस पुरुषा एंड प्रकृति? तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड मीनिंग आ सकता है, या फिर इनका मतलब क्या होता है, या फिर वो पैटर्न मैचिंग आ सकता है आपस में, यू नो व्हाट ऑल दीज थिंग्स डिनोट्स टू। दैट इज पुरुष, पुरुष की प्रकृति, पुरुष की एक्टिविटी वो क्या करता है? इट्स पुरुष जिसको हम बोल रहे हैं वो केवल विटनेस करता है, विटनेस। आर यू गेटिंग? प्रकृति जिसको हम बोलते हैं उसमें सब मूवमेंट होता है, चेंज होता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड एवरीथिंग इज देयर। आर यू गेटिंग? और जो विटनेस है वो केवल और केवल देखता है, जानता है, जानने वाला। गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज सो। दिक्कत क्या है फिर? योग क्या योग ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम जब आ जाती है जब हम, हमारा पुरुष प्रकृति के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है। यानी कि है तो हम केवल विटनेस, जानने वाले, जो मैं रियल हूँ वो तो केवल जानने वाला हूँ। अंडरस्टैंड? ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, मैं केवल जानने वाला हूँ, नो वन। लेकिन जब मैं अपने आप को इस चेंज के साथ आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत कुरूप हूँ, मैंने अपने आप को, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। द थिंग विच इज़ चेंजिंग बिकॉज बॉडी डज नॉट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। जब मैंने अपने थॉट्स के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि यार आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी डम, यू नो पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट देमसेल्व्स, व्हेन the real me, which I don't know unfortunately, when I identified my real me with all these things which I am not, यानी कि पुरुष का प्रकृति के साथ आइडेंटिफिकेशन, तो रियल प्रॉब्लम हो जाती है। या तो ये चीज़ है, और या उसी को अगर अपन दूसरे उसमें बोलें तो जब मैं, जो मेरी प्रकृति है, अंडरस्टैंड, यानी कि जो चीज़ें चेंज हो रही है उसको मैं मेरा ट्रू सेल्फ समझ लेता हूँ, ये दोनों ही सिचुएशन जो हैं दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग? सो ये जो हमारा चित्त है, ये जो माइंड है, दैट इज बिलोंग्स टू द प्रकृति। ये जो माइंड है दैट बिलोंग्स टू द प्रकृति। दिस वेरी बॉडी बिलोंग्स टू द प्रकृति। और माइंड के कंपोनेंट, थॉट्स इन द माइंड, इमोशंस इन द माइंड। Understand? So in short, when I identified myself with my body, with my thoughts, with my emotions and everything, then the problem comes. ठीक है, चित्त के साथ। So me as a पुरुष is the pure consciousness which is supreme in itself. Getting? उसके बाद he has talked about the 5 different kaleshas. So 5 different kalesh, basically, uh, uh, just wait.
Okay, no problem. So he talks about avidya, asmita, rag, dvesh, and abhinivesha. So अगर अपन देखेंगे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष and all that thing, this is all the attachment and all that thing in the modern psychology. Okay, these are the source, five basic sources of suffering. अविद्या यानी कि illusion of the knowledge, the not the real knowledge. अस्मिता यानी कि egoness, identifying myself with something false, which I am not, instrument of body and mind. Raga, attachment to pleasure. Dvesh, aversion towards displeasure. अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट रियल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो जिसको अच्छा लगता है वो रहता है हमेशा उसके पास रहे, जो जिसको खराब लगता है कि वो जल्दी से दूर चला जाए, रियलिटी में ऐसा होता नहीं. व्हेन वी रिमेन न्यूट्रल सम एंड ऑल द कंडीशंस, दैट इज व्हाट इंडियन साइकोलॉजी इज सेइंग. अंडरस्टैंड. एंड द अग्निवेशा यानी कि फियर ऑफ डेथ, क्लिंगिंग टू लाइफ एंड ऑल दैट थिंग. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से कोई टर्म आ सकती है, ही इज डिस्कस्ड अबाउट द अष्टांग योगा, द 8 limbs. अष्टांग योगा, अष्ट अंग, अंग यानी कि लिम्ब, द 8 limbs ऑफ द योगा बेसिकली. कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि. यम यानी कि एथिकल रेस्ट्रेंट, नियम पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेंस यानी कि प्योरिटी, कमिटमेंट एंड ऑल दैट थिंग. यम एथिकल रेस्ट्रेंट का मतलब नॉन वायलेंस, कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे जो है वो ब्रह्मचर्य एंड ऑल दैट थिंग. नियम. आसन यानी कि पॉस्चर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कभी आगे अपन थेरेपी में बात करेंगे, कभी आगे डिटेल की क्लास में, कि हाउ माई बॉडी एंड माइंड आर इंटर रिलेटेड. If I learn how to make my body still, I can start work, my mind automatically start becoming still. As there is a fluctuations in the mind, so also there is a fluctuations in the body. कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होता है तो हमारे बॉडी जो है वो लगातार उसमें रेस्टलेसनेस होती है. अंडरस्टैंड. तो अगर हम माइंड हमारा स्थिर रहेगा तो बॉडी भी हमारी स्थिर रहेगी. लेकिन हमारी बॉडी में बहुत मूवमेंट है अननेसेसरी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्पसिव मूवमेंट. हम डांस कर रहे हैं, पर्पसिव मूवमेंट है, हम कर रहे हैं. लेकिन इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है, दैट रिलेट्स विद बेसिकली दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इम्बैलेंसेस देयर. तो आसन का मतलब कैसे हमारी बॉडी को स्थिर रखना. प्राणायाम, ब्रीद रेगुलेशन जो हम करते ही हैं. बाबा रामदेव सिखाते हैं साहब कि ये अनुलोम विलोम और काइंड ऑफ भस्त्रिका एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. Again, it is very important, the breathe and the mental functioning, emotions are very much related. You see, in a different type of emotions, our breathe pattern changes. So if we are able to regulate our breathing, a lot of emotions can be regulated very easily. Then pratyahar, withdrawal of senses, धीरे धीरे ड्रॉइंग सेंसेस इनवर्ड्स, बाहर से हटा के अंदर लेके जाना. धारणा यानी कि concentration, fixing the mind on the single object. ध्यान, meditation, closing the eyes, samadhi. Then he talks about the different types of samadhi: nirvikalp samadhi, savikalp samadhi. Understand? So different type. What I am trying to telling you is this: don't consider all these questions, don't consider all these points as irrelevant, because the question can come from any kind of term come, and they might ask the meaning and how it is related, with whom it is related in XYZ. So we need to remember this, and not just remember this, understand that very carefully. Getting this? अब यहाँ पे भी जो अष्टांग योगा में जो फर्स्ट 5 लिम्स हैं उनको अपन बोल रहे हैं यम टू प्रत्याहार तक, वो रिलेट करते हैं बहिरंग. ओके. और एक्सटर्नल लिम्स, और जो नीचे जो ध्यान धारणा समाधि है ये है इंटरनल, अंदर. ठीक है, दैट इज द थिंग्स. अब यहाँ पे 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, समाधि और केवल्य. समाधि 2 तरीके की, सव्यविकल्प, निर्विकल्प समाधि, जहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं और हमारा माइंड शांत रहता है किसी ऑब्जेक्ट के सहारे, विद एंड सपोर्ट. ओके. निर्विकल्प जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता, और उसको फिर लास्ट में कैवल्य भी बोला जाता है. कैवल्य, कैवल्य का मतलब देयर आर 2 टर्म्स इन इंग्लिश, अलोननेस एंड लोनलीनेस. Kaivalya is aloneness or liberation, not loneliness. There is a difference.
When I say I am alone, what does it mean? That I am with myself. I am very happy with myself, in my own company. मैं अकेला हूँ, मैं स्वयं के साथ. एंड व्हेन आई से आई एम लोनली, इसका मतलब इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन. इसका मतलब कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला रह. गेटिंग द थिंग. अलोननेस, मैं स्वयं के साथ. This is the feeling of what we can say extreme ecstasy. And when I say I'm lonely, that is nobody is with me. सबने मेरे को छोड़ दिया. That is a very negative and depressive feeling. So कैवल्य का मतलब we are talking about aloneness. Clear this point? That is basically the thing. उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इज बेसिकली द सूफिज्म. सूफिज्म is a mystical branch of Islam which talks about basically dissolution of ego self. तो ये ईगो को एक अड़चन नहीं मानते. अकॉर्डिंग टू सूफिज्म ईगो एक तरीके का पर्दा है जो ट्रुथ यानी कि बिलव्ड जिसको माना. बिलव्ड यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है. बिलव्ड इज बेसिकली व्हाट इज नोन एज अ ट्रुथ. और आपके पर्सन के बीच में एक ईगो नाम का एक व्हील आ जाता है जो हमें उस ट्रुथ को पहचानने नहीं देता, देखने नहीं देता, उसके साथ मिलन नहीं होने देता. तो ये जो सूफिज्म है बड़ी प्रेम की, बड़ी रसीली सी एक वो है धारणा. आपने वो गाना सुना है ना, जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुप के, कि अकल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट के पट खोल. तो ये जो घूंघट के पट खोलने का मतलब भाई ये जो ईगो का जो पर्दा आ गया ना, पट पर्दा, इसको साइड में लगा दो. अगर इसको हमने साइड में कर दिया तो जो सामने है मतलब उससे हमारा मिलन हो जाएगा. अंडरस्टैंड? एंड दैट इज व्हेन it is something like you call when the drop of water falls into the ocean, then there won't be any separate existence, won't remain. It becomes an ocean. अगर बूंद जब एक सागर में मिली तो बूंद का एग्जिस्टेंस तो खत्म और वो खुद सागर बन जाएगी. अंडरस्टैंड दिस? सो दैट इज जिसको ये बोल रहे हैं व्हाट, फना हो जाना, मिट जाना. क्योंकि मिटोगे तभी आप सागर बनोगे. गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो उसमें कुछ एक टर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. इसमें ये फना, जिक्र, इश्क, ऑल दीज थिंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट टर्म इन द सूफिज्म. और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एज एन इंटीग्रल योगा, श्री औरोबिंदो का. इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अब तक आपने सुना होगा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा. राज योगा, ओके, कर्म योगा, bhakti yoga and all that thing. What he is talking about this, that there should not be any separate different types of yoga. Understand? Gyan yoga. He is talking about integral. What he is taking कि when we take only one type of yoga and pursue it, we neglect the other sort of things. तो somewhere जो हमारी psychic being है या उसकी unity है उसको हम खंडित करते हैं. तो as a human we need to, in his teachings he has integrated all, जिसमें ज्ञान योगा, भक्ति योगा, राज योगा, कर्म योगा, ध्यान योगा, everything is integrated. That is what is called as integral yoga. Understand? Because say when we, according to him, when we take only the Gyan Yoga, when we pursue the Gyan Yoga, we neglect the heart body action, because Gyan Yoga is all about understanding and knowing through intellectualism. Right? Bhakti Yoga hota hai to somewhere we discriminate the mind and the discrimination and all that thing, because Bhakti is all about heart, devotion, love and everything. He is talking about taking all types together. In short, understand? That is basically what it means. Now next basically topic is what we called as the different paradigms. Okay, paradigms का मतलब way of paradigm का मतलब ऐसा समझो कि whenever we pursue any knowledge, तो we make certain assumptions कि आप किसी अननोन जगह पे जा रहे हो, किसी अननोन चीज़ को परस्यू करना जा रहे हो, तो नॉर्मली वी वोंट गो विद अ ब्लैंक माइंड. हम कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड में कुछ अज्यूम्शन होता है कि कोई चीज़ कैसी होगी,
अच्छी होगी, बुरी होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी नहीं होगी, कुछ अजम्पशन ऑटोमेटिकली हमारा माइंड क्रिएट करता है। अंडरस्टैंड? तो पैराडाइम्स ऑफ ट्रुथ का मतलब whenever even we seek the truth or the reality, we have the certain kind of an assumptions related to it. Understand? तो वेस्टर्न सीकिंग ऑफ नॉलेज और इंडियन सीकिंग ऑफ नॉलेज इन द फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी दोनों में ही कुछ एजम्पशंस माने गए हैं। ठीक है, वो तीन तरीके के बेसिकली हो सकते हैं। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, एंड थर्ड वन इज मेथडोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब व्हाट एग्जिस्ट, आर यू गेटिंग? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है व्हाट एग्जिस्ट, इट मींस डज कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट, या फिर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉन्शियसनेस हम किसको कह रहे हैं? इज इट रिड्यूसिबल टू द ब्रेन और इज इट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी? दीज आर एन अजम्पशंस, आर यू गेटिंग? तो अगर इंडियन पैराडाइम जो है उसकी जो ऑन्टोलॉजी है, जिसके बारे में अभी अपन ने 5 डिफरेंट अप्रोचेस की बात करी, अकॉर्डिंग टू इट Indian ontology is that consciousness has its separate existence. But Western ontological perspective talks about that it is reducible to the brain in a lot of places, basically, at least in the modern science. Right? Epistemology, how do we approach it, or how do we know? Not even approach, how do we know? कि मैंने कुछ जाना, तो मैंने कैसे जाना? थ्रू मेरे को उस चीज़ का इल्हाम हुआ, अंदर से इंसाइट मिली, कि मेरे सेंसेस को पता चला, कि मैंने उसको एक्सपीरियंस करा, कि मैंने किसी को ऑब्जर्व करते हुए देखा, उससे मैंने जाना। दैट इज़ व्हाट एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब कोई भी नॉलेज जो है, हाउ डू वी नो इट, गेटिंग? दैट इज एन एपिस्टेमोलॉजी, हाउ डू वी नो। तो ऑब्जर्वेशन या फिर इन्फर भी कर सकते हैं। इन्फर का मतलब गेस वर्क, अंडरस्टैंड? गेस वर्क। जैसे कि यू माइट हैव, इफ यू रीड द फिलॉसफी, यू मस्ट हैव हर्ड द फेमस स्टेटमेंट, वेयर एवर देयर इज अ स्मोक देयर मस्ट बी द फायर। व्हाट वी आर डूइंग, हमने कहीं धुआं उठता देखा तो ऑटोमेटिकली हमें अंदाजा लगता है कि यहाँ कहीं आग लगी होगी। हम आग देख नहीं रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं। दैट इज एन इन्फेरेंस, राइट? ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, टेस्टिमोनी, हमने खुद ने नहीं देखा लेकिन किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, हम उसकी बात को मानते हैं, टेस्टिमोनी। ठीक है? तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजिकल मेथड्स, बेसिकली observation, inference, testimony, introspection, meditation, all these things. Then methodology, how should we study it? तो उसमें स्टडी का मतलब कौन कौन सा होता है? फिनोमेनोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल है, सर्वे है, योगा बेस्ड डिसिप्लिन है, ऑब्जर्वेशन है, वो मेथड। उसको जानने का अब स्टेप बाय स्टेप तरीका। आर यू गेटिंग? मतलब ऐसा समझो कि जैसे योग है, तो योग ने की कॉन्शियसनेस इज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, वी एज अ पुरुष, दैट इज एन ऑन्टोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है क्लोजिंग योर आईज, थ्रू द मेडिटेशन वी रीच टू दैट स्टेट से। ओके, मेथड अष्टांग योगा, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन फाइनली रीच। Getting this point? That is what it means by paradigm and ontology. Then there are basically what we called as a Western paradigms. Western paradigm, there are different types of there are different types of Western paradigm. Okay, so they are basically positivism, post-positivism, critical perspective, social constructionism, existential phenomenology, and cooperative inquiry. So what does this mean basically? Positivism, ontology, single objective reality, यानी कि अगेन पैराडाइम का मतलब फ्रेमवर्क्स, आर यू गेटिंग? तो उसमें सबसे पहले जो जो अप्रोच थी, दैट इज बेसिकली नोन एज द पॉजिटिविज्म। एंड व्हाट, वेट, हाँ, सो वेस्टर्न पैराडाइम में बेसिकली पॉजिटिविज्म, व्हाट पॉजिटिविज्म बेसिकली टॉक्स अबाउट,
Positivism talks about it's a most oldest and most dominating scientific paradigm which believes that there is only one reality. There is only one objective reality out there, and you can know it through careful observation and verification. Things of physics experiment like measure karna, control, and everything. There is only one. Okay, positivism that is prevalent in the most of the scientific thinking and the scientific approach. Okay, but Indian system opposes this approach. Understand? You must have heard about this term called Syadavad. Say, for example, that there are many aspects of reality, and even psychology में तो हमारे बहुत important है क्योंकि Indian psychology basically oppose this positivity. What it is saying is that when we are talking about a psychology, human behavior, human mind, there is not a single structure. Unfortunately, what happens, what we are calling as a westernization of knowledge, कि साहब वेस्टर्न लोगों ने साइंटिस्ट ने कुछ लोगों का सैंपल सर्वे लिया, दे वर द वाइट स्पीकिंग पीपल, कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उनके ऊपर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करा, उसके बाद वहाँ से उनके सामने कोई रिपोर्ट निकल के आई और उन्होंने थ्योरी दे दी और उस थ्योरी को उन्होंने पूरी दुनिया पे अप्लाई कर दिया एंड वी स्टार्ट बिलीविंग. But does it really? We are, as a humans, we are also the product of the society or culture or upbringing. The environment around us plays a very important role in how I see myself and how I see others and how I will behave in a certain situations. Understand? But somewhere in our country, for example, say psychology in India, which we are talking, somewhere we have just learned one kind of approach, what the Western people think. If they have given this theory, they say that theory is proven, that is right. But do we really Indian also think in such a way? आर यू गेटिंग? दैट इज अ वेरी, तो यहाँ पर अकेडमिक्स में धीरे धीरे अगर अपन 80s 90s में देखें, ये व्हाट बेसिकली व्हाट दीज पीपल आर आल्सो डूइंग अप्रोचिंग, ये जो ग्रीश्वर मिश्रा जी हैं, ये क्या कह रहा है कि बेसिकली कि देयर इज नॉट जस्ट अ वन single perspective. There are different cultures. Our behavior is our own, what we can say, cultural and environmental factors plays a very important role in the formation of an individual psychology and even the collective psychology of the society. So we cannot just understand by the one single approach. Point number one. Second important, there is not just the one single medium of कि हम केवल आँख खोल के ऑब्जर्व करें और एक्सपेरिमेंट करें और एम्पिरिकल वे होना चाहिए और रेशनल होना चाहिए. व्हाट वी आर सेइंग कि इवन व्हेन वी क्लोज आवर आईज एंड व्हेन वी contemplate and come out with certain ideas, that is also the way of seeking the knowledge which was there in our Indian system. Getting this point? So that is the positivism. It talks about just a single, what we can say, single reality. Post-positivism, a reference, a refinement of positivism, which talks about accept that reality exists but admits we can never know it perfectly. Are you getting? All knowledge is fallible. Associated with philosopher Karl Popper and the idea of falsibility, a theory is scientific only if it can be proven wrong. ये लो जी साहब. A theory is scientific only it can be proven wrong. If it cannot be proven wrong, it cannot be. मतलब पहली बात तो ये है कि रियलिटी तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हम कभी उसको पूरा की पूरा जान ही नहीं सकते, हमेशा वो अधूरी रहेगी, पहली बात. और दूसरी चीज़ की थ्योरी तभी वैलिड है जब हम उसको फाल्सिफाई कर पाए. अब ये भी बड़ा यहाँ पे ये साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस का पूरा की पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है, अगर अपन साइंस का डेवलपमेंट सोचे तो why the science developed? Why? Because it was not static. It was all, even Einstein ने कुछ theory दी तो there were the people who criticized, who found the critical aspects of the Einstein theory कि इसमें ये चीज़ें गलत हैं. Science is always open, or any kind of scientific theory is always open to the criticism, and it says that try to give me the negative, a kind of point जिससे कि it can be improved upon. अगर वो स्टैटिक हो जाएगी, नहीं साहब जो मैंने बोल दिया वही परम सत्य है, अब कुछ भी नहीं है. दैट इज व्हाट, हाउ द रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द साइंस. आर यू गेटिंग हाउ इट इज? द रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द साइंस. रिलीजन एक सत्य है, बस हमने जो बोल दिया, हमारी किताब में जो लिखा है वही परम सत्य है, बस. उसके बाद में कोई डिबेट नहीं. अगर आपने कुछ बोला तो ब्लास्फेमी का मुकदमा चलेगा. या आप
जो है अथीस्ट हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको जो नरक मिलेगा, दैट इज व्हाट द अप्रोच. लॉट ऑफ, I'm not talking about all religions, but just general understanding might be there are obviously differences. Getting the point. So that is post-positivism. Critical perspective argues that reality is not neutral. It's shaped by, now it is telling that, argues that reality is not neutral, it is shaped by power, ideology and social structures. Are you getting? So, for example, why the Karl Marx became very famous. When he talks about the social oppression and all these things, it's shaped by power, ideology, social structures. Knowledge itself is never innocent. It reflects who holds the power. भाई जिसके हाथ में सत्ता वही सत्य है. मेरा वचन ही मेरा शासन है. What does it mean? If I am all the way powerful, whatever I will say, you have to consider it as a truth. And it, if we look at the historical perspectives and even today as well, at certain levels, the powerful people, how they denote and how they let the knowledge expressed in a different mediums, in a different levels, that becomes a, are you getting this point? That is a very, that is a critical, matlab, the knowledge is basically what the reality is shaped by the power एंड द आइडियोलॉजी. तो जिसके हाथ में पावर है वही रियलिटी को शेप करता है अकॉर्डिंग टू गेटिंग. That's fine, that's a one approach. Then social constructionism, it talks about that the constructed language is वो रियलिटी एंड मीनिंग आर नॉट आउट देयर. ऐसा नहीं है कि रियलिटी एक जगह है जहाँ पे हम उसको देख लें साहब हमें रियलिटी मिल गई. रियलिटी हमारे सोशल इंटरेक्शन से, लैंग्वेज से बनती है, इवॉल्व होती है. इट्स नॉट जस्ट वन स्टैटिक थिंग which we have just gone and contemplated and find out that one, it's a dynamic process. It evolved through our interaction with the people around us, through language and society and all that thing. Are you getting associated with Kenneth Gregan and language meaning making and all that thing? Then existential phenomenology talks about the एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस. यहाँ पे वो बात करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी, मैं मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो भी रियलिटी को जानने का एक पार्ट. फिनोमेनोलॉजी, हालांकि फिनोमेनोलॉजी साइंस में इतनी ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच है नहीं, बट दैट इज़ वन ऑफ द aspect. Getting this point? So these are basically the kind of thing. It talks about uh, okay, so this is the Western knowledge paradigms. Basically, there are Western knowledge paradigm: positivism, post-positivism, critical perspective, social constructionism, existential phenomenology, cooperative inquiry. And the next is Indian knowledge paradigm के बारे में तो हमने बहुत सारी बात करी ली. उसके बाद फाइनली बेसिकली साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज बेसिकली अविद्या एंड विद्या. So basically they talks about 5 types of knowledge, 1 2 3 4 types of knowledge: avidya, vidya, paravidya, paravidya. Avidya का मतलब it's not the lack of knowledge, it's about illusion. It's about when it's not
it's not about not knowing. इट्स नॉट जस्ट लिटरल सेंस तो होता है नॉट नोइंग और इग्नोरेंस, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉलेज विद माय ईगो। अंडरस्टैंड, ऐसा समझो कि जैसे एक फिलॉसफी में एक एग्जांपल दिया जाता है ना, व्हेन आई कंसीडर अंधेरा थोड़ा सा कम उजाला है, रोशनी कम है, और मैंने अगर रास्ते में रखी हुई रस्सी को सांप समझ लिया, तो मेरे को ये जो फॉल्स नॉलेज हुआ है, दैट इज बेसिकली व्हाट अविद्या। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉट नोइंग, इट्स नॉट अ नॉट नोइंग, इट्स अबाउट द फॉल्स नॉलेज और अनट्रू नॉलेज और द इग्नोरेंस। तो यही तो है कि हमने जो है किस तरीके से अपने ईगो को आइडेंटिफाई किया हुआ है किसी चीज़ के साथ, कि मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता हूँ, किसी ने कल आके मेरे को बोलते तेरे को तो कुछ नहीं पता, तो बेवकूफ़ है, नाउ मेरे को ऐसा लगेगा किसी ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। तो मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ के साथ कर रखा है, दैट इज बेसिकली व्हाट एन इग्नोरेंस। Getting this? So application is basically, if we understood it, it is a source of suffering, attachment, fear and ego. Then vidya is basically what, again the knowledge. Okay, so knowledge में vidya general knowledge, general knowledge liberating into itself. So vidya is a umbrella term in which there are two terms. Apara vidya is an umbrella term in which there are two types of vidyas are there, knowledges are there, apara vidya, para vidya. अपरा विद्या इज अ लोअर एम्पेरिकल नॉलेज, यानी कि ठीक है, मैं इस वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में जो समझता हूँ कि मैंने कोई बुक पढ़ी, मैंने कोई नई चीज़ सीखी, अंडरस्टैंड, तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद अ चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, knowledge of changing objects, the material things, that is known as the apara vidya. Okay, so science, language, mathematics and all that thing, fiction and everything is a part of that. Then para vidya, it's about pursuing the ultimate knowledge, the one real knowledge जो केवल एक ही है, which is unchangeable, higher spiritual knowledge. That is basically what, it's a transcognitive or spiritual realization. Getting this point? So these are basically the different types of knowledge. उसके बाद इंडियन एंड मेन स्ट्रीम, अगर अपन वेस्टर्न नॉलेज की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर देखो बहुत क्विक अपन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वो कर लेते हैं कि फोकस एरिया के से अगर अपन स्टार्ट करें, तो जो है वो इंडियन साइकोलॉजी में फोकस एरिया होता है पर्सन, सब्जेक्ट या कॉन्शियसनेस या ट्रांसफॉर्मेशन। वेस्टर्न साइकोलॉजी में बिहेवियर, कॉग्निशन, अडेप्टेशन, एनवायरनमेंट। देखो कुल मिला के बात ये है, अगर अपन जब फर्स्ट बार साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो बोलते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में गोल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं व्हाट इज बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, अंडरस्टैंड, व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, अंडरस्टैंड, and how to control it, understand, prediction, description, explanation, prediction and controlling of behavior, understand, and that is related with our normal worldly affairs. इंडियन साइकोलॉजी का एम केवल उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करके कैसे मैं अपने ट्रू सेल्फ को जानूँ। इंडियन साइकोलॉजी का फोकस है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर। वेस्टर्न साइकोलॉजी का है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कॉग्निशन, अडेप्टेशन एंड ऑल दैट थिंग। देन ईगो, सेकंड डिफरेंस इज ईगो इज ऑफन एज अ व्हील, सेल्फ रियलाइजेशन इज, ईगो को हमने इल्यूजन के साथ जोड़ा है। यहाँ पर वेस्टर्न साइकोलॉजी बात करते हैं ईगो एडजस्टमेंट के बारे में, कि कैसे ईगो बैलेंसिंग पावर है एड और सुपर ईगो के बीच में, है ना, और ईगो का हेल्दी डेवलपमेंट किस तरह। हम यहाँ बोल रहे हैं ईगो ही प्रॉब्लम है, और ये बोल रहे हैं ईगो को का हेल्दी डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग? दैट इज बेसिकली द डिफरेंस। मेथड, हम इंडियन साइकोलॉजी में जो मेथड है वो प्लूरलिस्टिक, प्लूरलिस्टिक में वी टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन, we also believe, we also apply the introspection, phenomenology यानी कि experiential discipline practice. Here Western approach is more what we call as a so-called scientific, where we called about experimentation, measurement, and and all that things are basically they talked about or give a privilege. Aim is ultimately Indian psychology का aim है cultivation, liberation,
स्टेबल माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन। वेस्टर्न साइकोलॉजी का बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कंट्रोलिंग एंड प्रेडिक्शन, symptom reduction and all that thing. Understand? So these are some of the things which are basically the thing. Okay, so I think these are the main important thing. उसके बाद there might be certain MCQs, different type of questions may come from it. तो वो थोड़ा सा जो है हमें समझने पड़ेंगे कि अविद्या, फॉर एग्जांपल से, अविद्या in Indian psychology is best understood. Understand how Indian psychology is differentiated from the Western psychology and different type of, अगर आपने ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो अपन ने समझ लिए तो you might find it easier. Fine. तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे. अगर इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस करना चाहते हो MCQ से रिलेटेड, तो काइंडली drop a message in the comments. We might have a separate class for the question answer and all that.